Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today, we are going to start unit number 3, that is Control Structure, and now we will cover topic 3.1, that is Decision Making in C. So we will see what are the decision making statements in C. After watching this video, you will be able to state the meaning of decision making, list decision making statements, and describe if and if else statement of decision making with its syntax. Course outcomes that will get achieved is CO3, that is, you will be able to develop C programs using control structure. So, by using if and if else control structure, you will be able to develop C programs. And program outcomes that will get satisfied are PO1, that is, there will be improvement in your basic as well as computer engineering and electronics engineering specific knowledge. Then PO4, you will be able to execute various programs using engineering tools like Turbo C++ software, and you will be able to debug the program. Then PO6, you will be able to work on small projects with this knowledge in a team or as an individual, and by doing this micro project or project, your interpersonal skills as well as your oral and written communication skill will get improved. Then whatever the knowledge you are gaining here, that knowledge will be with you for lifetime. So PO7, that is lifelong learning, will be satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of algorithms and flowcharts, and you should know all the operators of C language and input-output statements of C language. Now let us start with what is decision making. डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जैसे हम हमारे रियल लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, आइदर हमको सामने जाना है, किसी शॉप में जाना है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन से रूट से जाना है. आइदर लेफ्ट साइड वाला रूट हम फॉलो करते हैं या आइदर राइट साइड वाला रूट फॉलो करते हैं. सो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. सो सी लैंग्वेज में ऐसे ही हमको हमारे प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो मेंटेन करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं. सो decision making is about deciding the order of execution of statements based on certain conditions or repeat a group of statements until certain specified conditions are met. मतलब हमको हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो डिसाइड करने के लिए कुछ कंडीशंस देने पड़ते हैं, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको क्या करना है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है मीन्स फॉल्स होती है तो हमको क्या करना है, या फिर हमको कोई जो स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है. सो इस टाइप का अगर हमको डिसीजन लेना है तो हमको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ता है. सो C language handles decision making statements by supporting the following statements. So C language में हमारे पास 4 statements है जिसको हम decision making statements बोल सकते हैं, या फिर इनका यूज करके हम decision make कर सकते हैं. So first statement is if statement, second switch statement, then conditional operator statement, and then last is use of go to, break and continue statement. So ये if statement जो होते हैं इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं. So there are 4 decision making statements: if, switch, conditional operator and go to, break and continue statements. Decision making with if statement. So if statement के 4 टाइप के फॉर्म्स होते हैं.
So if statement is implemented in 4 different forms: simple if statement, if else statement, nested if else statement and using if else if statement. तो ये 4 फॉर्म्स जो होते हैं वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं. सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है वो 2 टाइप्स में ही डिवाइड होता है. बेसिकली इफ एल्स होता है, देन इफ एल्स के 4 फॉर्म्स होते हैं जो अभी हमने देखे हैं, और एक इंडिविजुअल होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट इज स्विच स्टेटमेंट. नेक्स्ट, सिंपल इफ स्टेटमेंट. अब जो हमने इफ स्टेटमेंट के 4 फॉर्म्स देखे हैं उसमें से सिंपल जो पहला वाला इफ स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स. सो इफ यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा, कोई कंडीशन शो करेगा. देन इफ एक्सप्रेशन, देन दिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ये एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट 1 है उसको एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है या कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम इस लूप के बाहर निकलेंगे, इसके बाहर निकलेंगे और इमीडिएटली स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो इफ द एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है देन द स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर दिस एक्सप्रेशन और दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सो दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. और अगर इफ दिस एक्सप्रेशन और कंडीशन फॉल्स देन वी विल जंप आउट ऑफ द लूप. अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हम लूप बोलेंगे. हम इमीडिएटली इसके बाहर निकलेंगे और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ पे अभी स्टेटमेंट 2 है, सो स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 2 कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे. सो दिस इज द सिंटैक्स एंड वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट. देन इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है, दिस इज शॉर्ट प्रोग्राम. ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है #include stdio.h. इसमें से हम printf और scanf फंक्शंस जो है वो यूज करने वाले हैं, जिनका डेफिनेशन इस हेडर फाइल में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हमारा मेन जो फंक्शन है वो है, इसके सामने हमने डेटा टाइप लिखा है void. इसका मतलब हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. देन हमें यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं और 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो शो करना है. सो हमने 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं x एंड y. देन x की वैल्यू हमने 15 से इनिशियलाइज की है एंड y की वैल्यू हमने 13 से इनिशियलाइज की है. अब इफ कंडीशन लिखना है. सो इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाती है y की वैल्यू से तो हम क्या प्रिंट करेंगे. सो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम प्रिंट करेंगे कि x इज ग्रेटर देन y. जो भी हमको प्रिंट करना है वो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे और उसको डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे. देन ये हमने सेमीकोलन दिया है. सेमीकोलन एक्ट्स एज अ टर्मिनेटर. सो जैसे ही सेमीकोलन एनकाउंटर होता है हमारे कंपाइलर को, सो वो लाइन को ब्रेक कर देता है. देन हम यहाँ पे आएंगे और देन ये मेन फंक्शन का हमारा कर्ली ब्रेस है वो क्लोज हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या है अभी 15 और y की वैल्यू क्या है 13. सो 15 इज ग्रेटर देन 13, हमारी 15 इज ग्रेटर देन 13 हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ऑब्वियसली हम ये प्रिंट करेंगे. अगर मैं यहाँ पे अगर ये वैल्यूज x की 13 लेती हूँ और y की 15 लेती हूँ, मीन्स वैल्यूज अगर इंटरचेंज करती हूँ तो x की वैल्यू क्या हो गई इंटरचेंज करने के बाद 13 और y की वैल्यू क्या होगी 15. सो 13 इज ग्रेटर देन 15, ये हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी. ओके, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम इस लूप के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे आएंगे. यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है बाहर निकलने के बाद, तो अगर ऐसी केस है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. लेकिन अभी x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 13 है और ये हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम प्रिंट करेंगे कि x इज ग्रेटर देन y. तो इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट. देन इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन
अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे इनसाइड द बॉडी। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम जाएंगे एल्स के पास, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लूप के बाहर निकलते हैं। लूप के बाहर निकलने के बाद इमीडिएटली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लूप के बाहर इमीडिएटली एल्स है और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। मीन्स अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 1 ये एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो इसका फ्लो चार्ट इस तरह से बनेगा। सपोज हमारी कोई कंडीशन है, सो इफ कंडीशन इज ट्रू, कोड इनसाइड इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। कोड इनसाइड इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन इज फॉल्स, कोड inside else body is executed. If this condition is false, code inside else body is executed. So इस तरह से हमारे if else statement का syntax है और हम इस तरह से उसको execute कर सकते हैं। Then एक simple example लेते हैं if else statement को demonstrate करने के लिए। ये हमारी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है hash include stdio.h। देन हमारा मेन प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो है void, मीन्स हमारा मेन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिया था, हमने दो वेरिएबल्स लिए थे x और y, और उनमें से कौन ग्रेटर है वो हमने प्रिंट किया था। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं। अब हमने x की वैल्यू 15 से इनिशियलाइज की है और y की वैल्यू 18 से इनिशियलाइज की है। सो इफ x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा एक्सप्रेशन या कंडीशन है। सो इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से तो हम प्रिंट करेंगे कि x इज ग्रेटर देन y। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम जाएंगे एल्स पार्ट में और हम प्रिंट करेंगे कि y इज ग्रेटर देन x। तो अभी x की वैल्यू है 15, सो x की वैल्यू है 15 एंड y की वैल्यू है 18। सो 15 इज ग्रेटर देन 18। 15 ग्रेटर देन 18, हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम ये पूरा स्किप करेंगे और जाएंगे इमिडिएटली इस लूप के बाहर निकलेंगे, और इस लूप के बाहर निकलने के बाद हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है, उसके अंदर जाएंगे और प्रिंट करेंगे y इज ग्रेटर देन x। तो हमारा आउटपुट हमको मिलेगा y इज ग्रेटर देन x। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के बाद हमको टर्मिनेटर्स ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है टू स्विच और जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सिर्फ हमारे पास जो कंडीशंस होते हैं, लूप्स होते हैं, उनमें हम सेमीकोलन्स नहीं लगाते हैं। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। Today we have studied different types of decision making statements. So there are 4 types of decision making statements: if, switch, go to and conditional operator. Then we have seen syntax and example of if and if else statement. So if का हमने syntax देखा, उसका example देखा और working देखा। सेम तरीके से हमने if else का syntax देखा, example देखा और उसका working देखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी आपको कोई क्वेरी है सो यू कैन रीच आउट ऑन द फॉलोइंग email ID. Thank you for listening the video. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.